displeased by what the butchery he did during the war. वो एक युद्ध था, That was a war. उसने काफी युद्ध लड़े हैं, Many battles he fought. लेकिन एक गलती दाऊद से हुई है, One mistake done by David. उसको छुपाने के लिए And to hide that mistake, उसने एक खून कर दिया। he killed. उसकी वजह से प्रभु से निराश हो गए। And the Lord was displeased with Daud, him. Oh David, तूने गुनाह किया है, you have sinned जो आपको नहीं करना चाहिए which you था। would not have done. फिर दाऊद ने प्रभु के साथ बहुत वादे किए। And then now David promises so many to the Lord. दाऊद फास्टिंग में चला गया, He went into fasting. अंदर रहने लगा, He started to remain रोने लगा, He started to weep, प्रार्थना करने लगा। praying. फिर प्रभु उसके ऊपर दयालु हो गए। And the Lord was merciful to him. 40 साल हिस्ट्री ऐसे बताती है। 40 years the history says. फिर उसने राज किया। Then he reigned. उसके बाद उसका बेटा सुलेमान सामने आया। Then his son Solomon came forward. उसने परमेश्वर का भवन बनाना शुरू किया। He started to build the house of God. इसी प्रकार हगाई को संदेश आया। In the same manner, Prophet Haggai got a message. भवन बनाना क्यों जरूरी है? Why is it important to build a house of God? इसलिए So that परमेश्वर चाहते हैं God wants मेरे लोग हर हफ्ते मेरी आराधना स्थान में आएं। that my people should come every week to my place of worship. आप यहाँ बैठे हैं ना, You are sitting over here. आपको मालूम नहीं है यहोवा आपसे कितने खुश हैं आज। You do not know how much pleased is the Lord God from you. जब आपका बेटा और आपकी बेटी आपकी बात मानते हैं, आप कितने खुश होते हैं। When your son or your daughter obeys you, you are so pleased. अगर वो बात न माने तो आप कितने दुखी हो जाते हैं। How much sorrowful you are when they disobey you. जितने यहाँ बैठे हैं, All you who are sitting here, यहोवा आपसे बहुत प्रसन्न है। the Lord God is so very pleased with you. अब वो यरूशलेम के लोगों को अपने सामने आराधना स्थान में देखना चाहते हैं। Now he wants to see the people of Jerusalem into the place of worship. और संदेश वहाँ पहुँच गया। And the message came. नबी ने जाके वहाँ संदेश दिया। And the prophet went and gave the message. यहोवा ऐसा चाहते हैं This is what the Lord God कि wants. तुम उसके लिए आराधना स्थान तैयार करो, That you build a place of worship for Him. क्योंकि मैं उस आराधना स्थान में जो लोग अशुद्ध हैं उनको शुद्ध करना चाहता हूँ। So that in that place of worship, those who are defiled, I may purify them. जितने भी अशुद्ध हैं, And all those who are defiled, जब वो प्रभु के पवित्र स्थान में आते हैं, वो शुद्ध होना शुरू हो जाते हैं। when they start coming into the place of house of God, they start to get purified. बहुत कम लोग हैं जिनको प्रभु ऐसे शुद्ध कर देते हैं। There are very few in a smack of a finger, the Lord God purifies them. नहीं तो आपको पूरी जिंदगी शुद्ध होने में लग जाती है। Otherwise, it takes all your life to purify and sanctify yourself. जिनके जीवन में परमेश्वर की योजना बढ़कर योजना होती है, And in those lives, God has an abundant will for them in their lives. एक साधारण योजना सबके लिए है, An eternal will for everyone. मगर खास योजना वाले लोग हैं, ऐसे प्रभु उनको शुद्ध कर देते हैं। But a special will He has, He just with a snap of a finger, He just changes them. जब लोगों ने परमेश्वर की बात को सुना, When people listen to the word of God, बाइबल कहती है उन्होंने मान लिया। and the Bible says they obeyed. मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूँ, I want to tell you too, अगर आप परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं if you're listening to the voice of God, तो परमेश्वर की आवाज को मानिए। obey the voice of God. इजरायली परमेश्वर की आवाज को सुनते थे, Israelites used to listen to the voice of God. लेकिन झंझट ये था, The problem was मानते नहीं थे। they never used to obey. क्या हो गया? What happened? हिस्ट्री ऐसे बताती है, The chronicles tell 400 साल के लिए वो गुलामी में चले गए। they went into slavery for 400 years. अगर आप इस गुलामी से बाहर आना चाहते If हैं, you want to come out of this slavery, जो यहोवा की आवाज आप सुन रहे हैं, उस आवाज को
मानिए। The voice of the Lord you are hearing, start to obey and pay attention to it. हम जबूर 107 उसकी 20 आयत देखते हैं क्या लिखा है। Let us see into the Psalm 107 verse number 20 what it says. क्या कहता है परमेश्वर का वचन? What does the word of God say? क्या आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं आज? Are you listening to the word of God? क्या आप चंगे हो रहे हैं प्रभु के वचन के द्वारा? Are you being healed by the word of God? क्या आप आशीष ले रहे हैं प्रभु के वचन के द्वारा? Are you receiving a blessing by the word of क्या आप God? विश्वास करते हैं कि आपकी प्रार्थना प्रभु सुन रहे Are you हैं? believing the Lord is listening to your prayers? अगर जो विश्वास करते हैं चिल्लाकर बोलिए आमीन। मैंने सुना नहीं आपने क्या बोला, एक बार फिर से। आपसे मैं वो वाला आमीन सुनना चाहता हूं जो विरोधी को हला के रख दे। Want to listen to that amen? यस, That shakes the enemy. क्योंकि आपके चिल्लाने से आपके भीतर प्रभु के वचन की प्रेरणा बढ़ती है। But as you shout, the inspiration for the word of God comes up. क्योंकि आप जब बोलते हो, When you speak, कौन सुनता है? who listens? पहले परमेश्वर से पहले शैतान को सुनाई देता है। Before God listens, the Satan listens. क्योंकि 3 सिंहासनों की बात होती है। There is a throne that is called 3 thrones. आप पहले ये जबूर 107 उसकी 20 आयत में देखो क्या लिखा है। Let us see into Psalm 107 verse number 20 what it says. वह अपने वचन के द्वारा, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, उनको चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं, जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। उससे निकाल देता है। लोग यहोवा की करुणा को, यहोवा की करुणा को, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्म के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है, हाँ, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर जो बहुत ही बड़े बड़े कार्य अपने लोगों के लिए करता है, उनके लिए आपको धन्यवाद देना है प्रभु का। आज मैं सुन रहा था, यहाँ मैंने कुछ गवाहियों को सुना। And I listen to the testimonies today. कितनी खूबसूरत उनकी जिंदगी में एक प्रभु की गवाही है। What a beautiful testimony they have in their lives of the Lord. एक बहन जिसको वॉशरूम में करंट लग गया था। And she was electrified in the washroom. आप सोच के देखो, Oh, come on, think. वहां पानी है There is a water on the floor और करंट है। and there is a current. मैं एक बात सबको यहाँ कहना चाहता हूँ, Want to tell everyone, अपने घर में एक ऐसा स्विच बोर्ड लगाइए यहाँ से सारी कनेक्टिविटी बंद हो जाए। just make a switchboard in your home from where everything can be disconnected and done away with. जब भी कोई आपको ऐसी मुश्किल आती है, वहाँ जाकर कोई भी आदमी बंद कर सकता है। Whenever you are in a problem, someone can go and switch it off. हमारी जिंदगी बहुत ही कीमती है, Our life is so very precious. सभी को ये करना है, Everyone got to do ध्यान it. देना है। Come on, pay attention. एक औरत थी, उसको 2 हॉस्पिटल ने मना कर दिया था। 2 hospitals denied a woman. आप बच नहीं सकते। You cannot live anymore. जब ईमान प्रभु पर है, When your faith is on the Lord, आप मर नहीं सकते। you cannot die. हालेलुया। Hallelujah. वो जिंदा थी और यहाँ खड़ी थी। She was alive and standing over here. एक लड़के को मैंने सुना है, I listened to a poem. प्रभु ने उसको जीवन दिया है। The Lord gave him the life. ये कैसे होता है? How it happens? प्रार्थना के साथ। By the prayer. जब हमारे बीच में चमत्कार होते हैं, When signs and wonders happen, चिन्ह होते हैं, there are signs happening, चंगाइयाँ होती हैं, healings are happening. हम क्यों प्रभु का धन्यवाद ना करें? Why we should not thank the Lord? अपने हाथों को उठाए, एक बार फिर से धन्यवाद Lift up your करते hands. हैं। Come on. जो सिचलाएं और धन्यवाद करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। चिल्लाइए और चलिए धन्यवाद जोर से। Shout loudly and say, "Thank you, Lord." ये आपका समय है धन्यवाद करने के लिए। Your time to thank the Lord. आप जितनी जोर से चिल्लाएंगे प्रभु आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। The louder you shall shout, the your shall answer heaven God. वचन में लिखा है, It is written in
पूरे जोर से मुझे पुकार, Come on, call unto me with all your strength. पूरे जोर से मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। Call me with all your strength and I will answer you. आज समय आपके पास, You have a time. पुकारिए प्रभु को, Come on, call the Lord. उत्तर दिए प्रभु, Oh Lord, अपने लोगों को उत्तर दिए परमेश्वर। answer your people, O Lord. इनकी बीमारियां जाती रहे, May your sickness go. इनकी टेंशन जाती May the रहे, tensions go. इनके विरोधी हिराए जाएं May their enemies be shaken और शर्मिंदा किए जाएं। and may they be ashamed. तेरे लोग आगे बढ़े प्रभु, May your people go forward. यीशु मसीह के नाम से, In the name of Jesus the Christ. आमीन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है आप सच में परमेश्वर की योजना को ले रहे हैं। And truly it looks to me, you are surely taking the will of God. मैं कुछ लोगों को देखता हूँ वो ऐसे बैठते हैं। I see some people just bending and just sitting like this. ऐसे ना बैठो, ऐसे बैठा करो, Sit straight. क्योंकि आप चुने गए हैं। For you are the chosen race. आपकी लाइफ में प्रभु की योजना है। In your life the plan of the Lord is. कुछ लोग छुप कर बैठते हैं, Some just hide and sit. छुप कर। Oh, in hiding. वो लिखता है, He writes, खुदाया Oh Lord, तेरी हजूरी से छुप कर भला मैं किधर जाऊं, where shall I go from thy presence? किधर जाऊं खुदाया। Where? आप किधर छुप सकते हैं? Where can you hide? आप सीधे होके बैठो और प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे पृथ्वी की ऊंचाइयों पर लेके चल। Sit straight and say to the Lord, take me to the heights of the earth. हाँ, प्रभु हमारे छुपने का स्थान है। Yes, the Lord is our dwelling place. उसमें छुपना चाहिए, We got to hide in Him प्रेयर के द्वारा, by the prayer, वचन के द्वारा, by the word, फास्टिंग के द्वारा। by fasting. आज कोई फास्टिंग में आया है? Has anyone come with fasting? वाह, इनके लिए, सबके लिए ताली बजाई। Let's clap for them. हालेलुया। Hallelujah. आज मैं फिर दो हैकल की बात करना चाहता I want हूँ। to talk about two the temples. एक हैकल, ये पूरा बदन एक टेम्पल है। Our body is the temple. हमारा बदन भी प्रभु का क्या है? What is the body? बोलिए, चलाकर टेम्पल Say क्या है? टेम्पल है। It's the temple. इस टेम्पल में झाड़ू पोछा होना चाहिए। Should there be cleanliness in this temple? इस टेम्पल में अत्तर छिड़कना चाहिए। You should spray perfume in this temple. अंदर और बाहर से इसको साफ करना चाहिए, You got to clean it from inside and outside. क्योंकि ये प्रभु का क्या है? What it is to the Lord? आपका शरीर प्रभु का क्या है? What is your body to the Lord? आपका शरीर प्रभु का क्या है? टेम्पल। Temple. लेकिन But ये सब नहीं बोल सके, all could not proclaim. ये सब नहीं कह सके कि मेरा शरीर प्रभु का मंदिर है। Not all could say my body is the temple of God. जिस दिन आप ये कहना शुरू कर दिया, समझो आप सच में प्रभु का टेम्पल The हैं। day you start to say you are truly the temple of God. क्योंकि जो अगल बगल की सिचुएशंस हैं, हालात हैं, आपके भीतर के जो हालात हैं वो आपको बोलने नहीं देते कि आप टेम्पल हैं। The situations of outside, the turmoil inside doesn't allow you to speak that you are the temple of God. क्योंकि आपके टेम्पल के अंदर के जो हालात हैं वो जानते हैं आप सच में अभी टेम्पल नहीं For है। your situations and the turmoils inside of you know you are no more a temple. अभी तो तुम कचरे के ढेर हैं, You are a temple filled. वहां से स्मेल आती A है, stench is coming from it. बदबू आती है, A great smell. वहां बहुत कुछ गंदा है अभी। So much dirt is over here. इसीलिए आपके अंदर से ये आवाज कभी नहीं आएगी कि मैं टेम्पल हूँ। That's why no voice shall come. I am a temple of God. और एक टेम्पल ये है, यहाँ हम एकत्र हुए हैं। And this is also one temple where we are gathered. इसको भी हैकल बोलते This हैं। is also called the house. और दोनों के बीच में अंतर क्या है? What is the difference between these two? इस टेम्पल में हम रहते हैं We live in this temple, और इस टेम्पल में प्रभु रहते हैं। and in this temple the Lord lives. ये हमारे इकट्ठा होकर प्रभु के सामने उसकी महिमा करने के लिए टेम्पल है। This temple is for us all to assemble together and fellowship with the Lord.
ये दोनों टेम्पल जो हैं, इनको संभालने का जुम्मा हमारे पास है। And we have the responsibility to take care of these two temples. इन दोनों टेम्पल को पवित्र रखने का जुम्मा हमारे पास है। To keep these two temples holy is a responsibility. इसको शुद्ध रखने का जुम्मा हमारे पास है। To keep it purified, we have the responsibility. जैसे हम इस टेम्पल को साफ करते हैं, As we broom and keep cleanliness in this temple, ऐसे ही हमने इस टेम्पल को, जो बदन का टेम्पल है, इसको भी साफ करना है। in the same way we got to this body, got to keep it clean. कभी कभी आपके पास ऐसे कपड़े होते हैं जो घर में धोए नहीं जाते। You have got some kind of clothes you do not wash at home. वो शहर भेजते हैं ड्राई क्लीन होने के लिए। You just take it to the city for the laundry to get it clean. अगर उसके ऊपर कुछ दाग आ जाए, And if some spot comes upon it, फिर स्पेशल ड्राई क्लीनर को दिखाया जाता है, ये देखना कैसे साफ हो सकता है। and then you show that spot on the cloth to the dry cleaner, how it can be gone. लेकिन इस बात को सोचें, Remember and pay attention to what I'm saying. एक साधारण कपड़ा, An ordinary cloth. अगर उस पे कोई दाग आ जाता है, निशान होता है, आप ड्राई क्लीनर के पास जाते हैं। A spot comes upon it and you go to the dry cleaner. एक कपड़े के लिए आप इतने फिक्रमंद हैं। You're so much attached to that cloth. अगर प्रभु के टेम्पल में कोई निशान है, कुछ दाग है, उसके लिए आप क्या करते हैं? What you do if you have got any spot? किसके पास जाते हैं आप? To whom do you go to? मेरा ये मानना है कि यीशु मसीह सबसे उत्तम ड्राई क्लीनर है, And I have this faith. Jesus Christ is the और greatest. यीशु मसीह अपने लहू से आपको धोकर साफ करते हैं, And Jesus Christ cleanses you with His blood. और आपके जितने भी पाप होते हैं वो यीशु के लहू से साफ किए जाते हैं। And all your sins are cleansed by the blood of Yeshua. जब आप बपतिस्मा लेते हो, When you get baptized, हम प्रार्थना क्या करते हैं? what do we pray there? बाइबल कहती है जो भी बपतिस्मा लेंगे उनके पाप उसमें कलीन हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। The Bible says, whomsoever shall get baptized, his sins shall be forgiven unto him. आप शुद्ध हो जाते हैं। You get purified. अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया, आज ही आपको पापों को छोड़ना है। If you're not yet baptized, you've got to leave your sins today. लेकिन शैतान नहीं चाहता Satan doesn't want आप पापों को छोड़ें, that you leave these sins. आप बपतिस्मा लें, That you get baptized. आप पवित्रता में आए। That you come in वो holy. कभी नहीं चाहता, He will never ever वो want. चाहता आप पापों में जाएं। He wants you to go in the sin. वो आपको ऑफर देता है, He gives you an offer. एक पाप के साथ एक पाप फ्री। With one sin, you get one sin free. वो आपको कॉम्बो बना के देता He है। makes a combo and give it to वो you. चाहता है इस दलदल से आप फंसे रहें, He wants you should be entangled in this. आप प्रभु के सामने प्रार्थना न कर पाए, Oh, you are unable to pray in the presence of God. आप हफ्ते बाद आराधना में ना आए, You do not come into the house. प्रभु के टेम्पल में ना Do not आए, come into the temple of God. क्योंकि वो चाहता है But He wants. आपको नाश करना, He wants you to be destroyed. लेकिन यीशु आपको बचाना चाहते हैं। Jesus wants to save you. यीशु आपको शुद्ध करना चाहते हैं। Jesus wants to purify. कितने जानते हैं कि प्रभु आपसे प्यार करते हैं? How many of you know the Lord loves you? अपने हाथों को उठा कर कहें, Oh, raise up your hands and say, प्रभु यहोवा, Lord God, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ I thank thee मुझे बचाने के लिए for saving me, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए। calling me unto thee. मैं अपना आप All of myself, आपके हाथ में देता हूँ, I submit into your hands. सरेंडर कर देता हूँ। I surrender. प्रभु आपकी योजना मेरे ऊपर प्रकट हो जाए। Oh, reveal your will for me. प्रभु तेरे वरदान मुझ पे आ जाए। Let your gifts come upon me, Lord. मैंने सुना I है have heard. मैं एक खास व्यक्ति हूँ, I'm a peculiar person. मैं इम्पोर्टेंट हूँ आपके लिए। So important for you. मुझे यूज कर प्रभु, Use me, Lord. मेरा इस्तेमाल कर परमेश्वर। Lord God, make use of me. आज मैं अपना आप तेरे हाथों में देता हूँ I give all mine to you. और अपना आप तेरे हाथों में समर्पित करता And I हूँ। submit myself to thee. मेरी मदद कर प्रभु। Help me, Lord. मैं विश्वास करता हूँ I believe आज आपने अपने वचन को भेजा है thou hast sent to me thy word, ताकि वो मुझे जीवन दे। that I may have life
मैं लगातार तेरी आराधना में आता रहूंगा I will come in your continuously और तेरे टेम्पल को शुद्ध रखूंगा। and keep the temple whole. मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ। I give my life to thee. मुझे ब्लेस कर प्रभु, Bless me, Lord. मुझे बरकत दे प्रभु। Bless me, Lord. जैसे आपने यरूशलेम के लोगों को मैसेज भेजा As you sent the people of Jerusalem message और उन्होंने माना, and they proclaimed आपने ब्लेस किया उन लोगों and you को। blessed them. मुझे भी ब्लेस कर प्रभु। Bless me, O Lord. मेरे घर को ब्लेस कर प्रभु, मेरे बिजनेस को ब्लेस कर प्रभु, मेरे परिवार को ब्लेस कर Bless my प्रभु, family. इस